بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت۔ مصنف مظہر کلیم MA، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 4 صفحہ نمبر 66 سے۔ جی ہاں، میرا تعلق شامل گڑھ کی سیکرٹ سروس سے ہے۔ اس لفافے کو کھول کر دیکھیے، ڈاکٹر جان اسمتھ نے کہا، اور سر سلطان نے میز پر پڑا ہوا پیپر کٹر اٹھایا اور لفافے کو ایک سائڈ سے بڑی احتیاط سے کھولنے لگے۔ لفافے کو کھول کر انہوں نے اندر 2 انگلیاں ڈالی اور ایک کاغذ باہر نکال لیا۔ کاغذ پر شاملی گڑھ کی سیکرٹ سروس کا مخصوص نشان چھپا ہوا تھا۔ سر سلطان کی نظریں کاغذ پر ٹائپ شدہ حروف پر تیزی سے ٹوڑنے لگی اور پھر آخر میں سیکرٹ سروس کے چیف راسکو پیٹنر کا نام اور دستخط پڑھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ راسکو پیٹنر اس کے ذاتی دوست بھی تھے اور وہ ان کے دستخط پہچانتے تھے۔ اور ویسے بھی خط میں راسکو پیٹنر نے ایک ایسا حوالہ دیا جسے سر سلطان کے علاوہ اور کوئی شخص نہ سمجھ سکتا تھا، اور یہ حوالہ ہی نہیں مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا کہ یہ خط اصلی ہے۔ انہوں نے خط جیب میں ڈالا اور پھر سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر جان اسمتھ سے مخاطب ہوئے۔ خوش آمدید ڈاکٹر، آپ مجھے پہلے اطلاع کر دیتے تو آپ کو یہاں آنے میں کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ سر سلطان نے اس بار انتہائی نرم لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، مجھے واقعی یہاں پہنچنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ ہمارے لیے معمولی کام ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہیں، ڈاکٹر جان اسمتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا تو دروازے پر چپراسی نمودار ہو گیا۔ چائے اور بسکٹ اندرونی کمرے میں پہنچا دو اور مجھے اطلاع کرو، سر سلطان نے چپراسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور چپراسی سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ سر سلطان نے چپراسی کے جانے کے بعد دوبارہ انٹرکام دبا دیا۔ جناب، دوسری طرف سے PA کی آواز سنائی دی، رفیع، میری طرف سے دوسری ہدایت ملنے تک تمام ملاقاتیں منسوخ کر دو اور مجھے فون بھی نہ ملانا۔ ڈاکٹر جان اسمتھ کے ساتھ اندرونی کمرے میں جا رہا ہوں، سر سلطان نے PA کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے سر، ویسے سر آپ یقین کیجئے کہ PA نے شاید ڈاکٹر جان اسمتھ کے اندر آنے کے متعلق وضاحت کرنا چاہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ محتاط رہنا، سر سلطان نے نرم لہجے میں کہا، جواب دیا اور بٹن آف کر دیا۔ سر چائے پہنچ چکی ہے، اسی لمحے چپراسی نے نمودار ہو کر معتبانہ لہجے میں کہا، تشریف لائیے۔ سر سلطان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ڈاکٹر جان اسمتھ سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ بھی جواب میں مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سر سلطان اسے لے کر شمالی دربار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھتا چلے گئے۔ انہوں نے الماری کے پٹ کھولے، الماری کے چاروں خانوں میں فائلیں بھری ہوئی تھی۔ سر سلطان نے اوپر والے خانے کے شمالی کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی سی فائل باہر نکالی، اسے کھول کر اس کا کلپ ہٹایا اور اوپر رکھے ہوئے ایک کاغذ کو الٹا کر کے رکھا اور کلپ دوبارہ لگا کر فائل طے کر کے واپس اسی جگہ پر رکھ دی۔ اس بار فائل رکھتے ہی الماری کا فائلوں کا والا حصہ تیزی سے سرک کر سائڈ کی دیوار پہ گھستا چلا گیا اور اب الماری کی دوسری طرف ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ویری گڈ، ڈاکٹر جان اسمتھ کے منہ سے بے اختیار تحسین آمیز کلمات نکلے۔ اسے یہ عجیب و غریب سسٹم بے حد پسند آیا تھا، تو یہ غیر متعلقی آدمی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس الماری کو کھولا جا سکتا ہے۔ شکریہ، سلطان نے کہا، اور پھر وہ ڈاکٹر جان اسمتھ کو لے کر الماری کے اندر سے ہو کر دوسرے دروازے کو پار کر گئے۔ ان کے اندر جاتے ہی الماری دوبارہ اپنی پہلی شکل میں آ گئی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور اس کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دیواریں سپاٹ تھیں، البتہ ایک کتابوں کی الماری موجود تھی۔ میز پر چائے اور بسکٹ موجود تھے۔ آپ کا چپراسی اس کمرے میں کیسے داخل ہوا ہوگا؟ ڈاکٹر جان اسمتھ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ چپراسی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ میز ہی نیچے چلی جاتی ہے اور وہ اس پر سامان رکھ کر اسے دوبارہ اوپر بھیج دیتے ہیں۔ سر سلطان نے اس کرسی پر ڈاکٹر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چائے کی 2 پیالیوں پر رکھا ہوا
कवर हटाया और प्याली उठाकर डॉक्टर के सामने रख दी। अब आप बेफिक्र होकर बात कीजिए, यहाँ से कोई बात किसी सूरत बाहर नहीं जा सकती। सर सुल्तान ने बिस्किटों से भरी हुई प्लेट डॉक्टर की तरफ घुसकाते हुए कहा, ठीक है, मुझे इत्मीनान हो गया है। दरअसल जो बात मैं कहने वाला हूँ वो इतनी अहम है कि इसके लिए ये इंतजाम जरूरी है, डॉक्टर जॉन स्मिथ ने कहा, और फिर इसने जेब में हाथ डालकर इसमें से एक आम सा सिगरेट केसन निकाला और सर सुल्तान के चेहरे पर कदरे नाखुशगवारी के आसार फैलने लगे, क्योंकि वो सिगरेट के धुआं को शदीद नापसंद करते थे और इस बंद माहौल में सिगरेट का धुआं इन्हें और ज्यादा नाखुशगवार महसूस होता था। लेकिन मेहमान नवाजी के आदाब की वजह से वो खामोश रहे। डॉक्टर जॉन स्मिथ ने सिगरेट केस खोला और इसमें से सिगरेट निकालकर मेज पर रख दिए। सिगरेट केस खाली हो गया तो इसने कोट के कॉलर में लगी हुई सुई पिन बाहर निकाली और इसे सिगरेट केस के साथ सतह पर बने हुए बारीक से सुराख में चुबो दिया। सुई चुभते ही सिगरेट केस की सतह एक ढक्कन की तरह उठती चली गई। इसके अंदर एक छोटी सी माइक्रो टेप मौजूद थी। डॉक्टर जॉन स्मिथ ने बड़ी एहतियात से वो माइक्रो टेप निकालकर सर सुल्तान की तरफ बढ़ते हुए कहा, लीजिए, ये माइक्रो टेप है, इसमें सब कुछ मौजूद है, इसे सुन लीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी। डॉक्टर जॉन स्मिथ ने कहा। सर सुल्तान ने माइक्रोटेप उंगलियों से पकड़ी और फिर उठकर वो किताबों की अलमारी की तरफ बढ़ते चले गए। इन्होंने इसका निचला खाना खोला और इसमें से एक जदीद किस्म का छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और इसे लाकर मेज पर रख दिया। माइक्रोटेप की डिबिया निकाल कर इन्होंने टेप उठाकर टेप रिकॉर्डर में फिट किया और फिर इसका बटन दबा दिया। टेप चलने की हल्की सी सरसर की आवाज निकलती और इसके बाद एक भारी आवाज इस पर गालिब आ गई। अब आप बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं, मैंने चेकिंग के तमाम निजाम ऑन कर दिए हैं। बोलने वाले का लहजा बेहद संजीदा था। चूंकि हम पहली बार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए सबसे पहले हमें तारुफ कराना चाहिए ताकि हम तफसील से एक दूसरे के बारे में जान सकें। एक और आवाज कमरे में गूंजी, ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं रूसिया की स्पेशल सर्विस का डायरेक्टर जनरल चिकोफ हूँ और मौजूदा मिशन के लिए एक मुआहदे के तहत मेरा नाम बतौर चेयरमैन तजवीज किया गया है। अब आप बारी बारी अपना तारुफ कराते जाइए। पहली आवाज ने अपना तफसीली तारुफ कराते हुए कहा और इसके बाद टेप चलता रहा और मुख्तलिफ आवाजें कमरे में गूंजती रहीं। सर सुल्तान का चेहरा लम्हा ब लम्हा जर्द पड़ता चला गया। इनकी आंखों में खौफ और दहशत के साए उभर रहे थे। इस मीटिंग में पेश होने वाली खौफनाक तजवीज का सुनकर इनका रुआ कांप उठा था। और फिर जब 1 घंटे बाद ये टेप खत्म हुआ, सर सुल्तान की हालत दीदनी थी। इन्हें जैसे सकता सा हो गया था। वो तस्वीर भी वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर खौफनाक मिशन भी तैयार किया जा सकता है। सर सुल्तान, आपने टेप सुन लिया? अचानक डॉक्टर स्मिथ की आवाज सुनाई दी और सर सुल्तान जिसे दोबारा होश में आ गए। इन्होंने चौंक कर टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ किया और फिर कांपते हुए हाथों से टेप अलग करके दोबारा डिबिया में डाल दिया। इसका जहन शदीद भूचाल की जद में आया हुआ था। इन्हें यूं महसूस हो रहा था कि वो किसी गहरे कुएं में मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं। ऐसा कुआं जिसकी कोई अट्ठा ही ना हो। आपको ये टेप कहाँ से मिला? सर सुल्तान ने कांपते हुए लहजे में कहा। आपका सवाल बेहद अहम है। इस कदर खुफिया मीटिंग का मुकम्मल टेप इन्होंने डॉक्टर जॉन स्मिथ को लौटा दी। शुक्रिया, अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर जॉन स्मिथ ने ऑटोग्राफ बुक जेब में डालते हुए कहा और सुल्तान उठ खड़े हुए और फिर सर सुल्तान ने दीवार की जड़ पर एक मखसूस जगह पर पैर मार तो दरवाजा दोबारा खुलता चला गया और सर सुल्तान डॉक्टर जॉन स्मिथ के साथ दोबारा दफ्तर में पहुंच गए। अलमारी एक बार फिर असली हालत में आ गई। ओके सर इजाजत, डॉक्टर जॉन स्मिथ ने मुसाफिहे के साथ हाथों बढ़ाते हुए कहा। सर सुल्तान ने बड़े गर्मजोश अंदाज में सहाफा का मुसाफिहा किया और डॉक्टर जॉन स्मिथ तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद सर सुल्तान चंद लम्हे कुर्सी पर सर पकड़े बैठे रहे। इस टेप में पेश की जाने वाली तजवीज इसकी रूह को भी हिलाकर रख दिया था। वो सोच रहे थे कि इस ताकतवर तरीन मुल्कों के मुकाबले में क्या पाकिस्तान और इमरान कामयाब हो सकेगा। चंद लम्हों बाद इन्होंने मेज पर बड़ा हुआ रिसीवर उठाया और सदर मुमलिकत के खुसूसी नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो जल्द अज जल्द इस टेप को सदर मुमलिकत को सुनवाना चाहते थे ताकि इसके नोटिस में आने के बाद इसे इमरान के हवाले किया जाए। यस पीए, टॉप प्रेसिडेंट स्पीकिंग। नंबर डायल होते ही दूसरी तरफ से सदर मुमलिकत के पीए की आवाज सुनाई थी। सदर सुल्तान बोल रहा हूँ, इट इज इमरजेंसी, सर सुल्तान से बात कराओ। सर सुल्तान ने बावकार लहजे में कहा। यस सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से पीए ने मोतबागे लहजे में कहा और फिर चंद लम्हे बाद सदर मुमलिकत की आवाज सुनाई दी। यस, सदर मुमलिकत के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। सर,
एक अहम तरीन बात मेरे नोटिस में आई है। हमारे मुल्क के खिलाफ खतरनाक तरीन साजिश। मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पर आप इसे आपके नोटिस में ले आऊं। सर सुल्तान ने परेशान लहजे में कहा। ठीक है, आ जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सदर मुमलिकत ने जवाब दिया, थैंक यू सर। सर सुल्तान ने कहा और फिर रिसीवर रखकर इन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। यस सर। दूसरी तरफ से पीए की आवाज सुनाई दी। राफे, मैं सदर मुमलिकत से एक अहम मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, बाकी तमाम मसरूफियात मंसूख कर दो। सर सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से पीए ने जवाब दिया और सर सुल्तान ने बटन ऑफ किया और फिर उठकर खड़े हो गए। इन्होंने जेब में हाथ डालकर टेक की मौजूदगी के इत्मीनान किया और टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए, जहां इनकी आमद और रफ्त के लिए खुफिया दरवाजा मौजूद था और इनकी कार और ड्राइवर भी वहीं मौजूद रहते थे। चंद लम्हे बाद वो राहदारी से गुजरकर एक बंद पोर्च में पहुंच गए, जहां इनकी सरकारी गाड़ी मौजूद थी। इस पर फ्लैग लहरा रहा था। बावर्दी ड्राइवर ने अदब से सलाम करके दरवाजा खोला और सर सुल्तान पिछली जनशित पर बैठ गए। प्रेसिडेंट हाउस चलो, सर सुल्तान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और ड्राइवर ने सहलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। दफ्तर के अगले दरवाजे से निकलकर गाड़ी तेजी से मोड़ काटकर बड़ी सड़क पर आई और फिर खासी तेज रफ्तारी से चलती हुई दाईं तरफ मुड़ गई। दाईं तरफ को जाने वाली सड़क अक्सर सुनसान रहती थी, क्योंकि यहाँ रिहायशी कोठियों की अक्सरियत थी। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट हाउस जाने के लिए ये मखसूस तरीन रास्ता था, इसलिए प्रेसिडेंट हाउस जाने के लिए अहम रास्ते हमेशा इस रास्ते को इख्तियार किया जाता था। सर सुल्तान अपनी ही ख्यालात में गुम थे और बुखार खासी तेज रफ्तारी से दौड़ी चली जा रही थी। अचानक साईं की तेज आवाज गूंजी और इसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाई और फिर हिचकोले खाती हुई सड़क पर उतरती चली गई। क्या हुआ? सर सुल्तान के मुंह से बेइख्तियार निकला, लेकिन इसके बाद इनका जिस्म और जहन उलट पलट होता चला गया और इनके जहन पर तारीकी की दबेज चादर छाती चली गई। गाड़ी उलटकर कलाबाजियां खाती हुई एक कोठी की दीवार से धमाके से जा टकराई और इस लम्हे इर्द गिर्द की साइड रोड से दो कारें तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई इस कार के करीब पहुंचकर रुकी और फिर इसमें से 4 अफराद बिजली की सी तेजी से निकले और इन्होंने गाड़ी के खुले हुए दरवाजे में से सेट पर बेहोश पड़े हुए सुल्तान को बाहर खींच लिया। दूसरी आदमी ने जेब से साइनर्स लगा रिवॉल्वर निकाला और स्टीयरिंग पर झुके हुए ड्राइवर की कनपट्टी पर फायर कर दिया। ठक की आवाज सुनाई दी और बेहोश पड़े हुए ड्राइवर की खोपड़ी के परक्षे उड़ते चले गए और फिर सुल्तान को कार में डालकर वो सब इंतहाई फुर्ती से अपनी कारों में सवार हो गए और दूसरे लम्हे दोनों कारें एक दूसरे के पीछे भागती हुई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गईं। स्पॉट की आंख खुली तो इसने लाशऊरी तौर पर नॉक सेक्टर लिए इसे हल्की सी बू का एहसास हुआ था और फिर चंद लम्हे बाद इसका शऊर पूरी तरह जाग उठा। इसने तेजी से उठने की कोशिश की और एक बार लड़खड़ाकर वापस गिरने के बाद दूसरी बार वो खड़ा हो गया और दूसरे लम्हे इसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट तैरती चली गई। इसने कालीन पर खुले हुए ब्रीफ केस और इन दोनों हमला आवर को एक दूसरे के करीब बेहोश पड़े देखा तो वो समझ गया कि क्या होगा। ब्रीफ केस खुलते ही जोर असर गैस ने इन दोनों को लिटा दिया होगा। इस पार के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। वो तेजी से घिसकता हुआ ब्रीफ केस की तरफ बढ़ता चला गया और फिर इसने ब्रीफ केस की तरफ पुश्त करके दोनों हाथों से इसके एक कुंडे को उंगली से टटोलकर एक मखसूस जगह को दबा दिया। हल्के से खटके की आवाज सुनाई दी और कुंडे के साथ एक तेज धार चाकू का फल बाहर को निकल आया। इस पार्ट ने दोनों हाथों की कलाई के दरमियान में बंधी हुई रस्सी को इस फल पर रखकर उसे तेजी से रगड़ा और दूसरे लम्हे इसके हाथ आजाद होते चले गए। हाथों के आजाद होते ही इसने बड़ी फुर्ती से अपने दोनों पैर आजाद किए और फिर वो उछल कर खड़ा हो गया। इसे अपने चेहरे पर चिकनाहट का एहसास हुआ। इसने उंगली चेहरे पर फेरी तो उंगली खून से तर हो गई और इस पार्ट तेजी से गुसलखाने में घुसता चला गया। इसका चेहरा खून से तर हो रहा था, लेकिन ये खून नाक से निकला था।
اس نے वाश बेसिन पर झुककर तेजी से मुंह धोया और इसे तौलिया से साफ करने के बाद वो बाहर निकल आया। सबसे पहले इसने अपना ब्रीफ केस उठाया, अलमारी खोलकर इसमें लटके हुए दोनों जोड़े इस ब्रीफ केस में डाले और फिर ब्रीफ केस को बंद करके इसने उसे बिस्तर पर उछाल दिया और इसके बाद उसने झुककर सफदर की दोनों टांगे पकड़ी और उसे घसीटकर गुसलखाने में ले गया और इसके बाद यही हरकत इसने कैप्टन शकील के साथ की। दोनों को गुसलखाने में डालकर इसने कोट की अंदरूनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और दूसरी जानिब से साइनर्स निकालकर रिवॉल्वर की नाली पर फिट करना शुरू कर दिया। साइलेंस फिट करते वक्त इसके लबों पर इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट तैर रही थी, लेकिन अभी साइलेंस पूरी तरह फिट न हुआ था कि उसे बाहर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी और वो अचानक चौंक पड़ा। इसने बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर जेब में डाला और गुसलखाने से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कौन है? स्पार्क ने दरवाजे के करीब पहुंचकर बड़े मेहताब लहजे में पूछा। वेटर सर। कोई ऑर्डर सर? दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। भाग जाओ, जब जरूरत होगी तो मंगवा लूंगा, स्पार्क ने गुस्से से डांटते हुए कहा। सॉरी सर, आपके कमरे में काफी देर से 2 मेहमान आए थे और आपकी तरफ से ऑर्डर न आया था, इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं खुद ही पूछ लूं सर, वेटर ने माजरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, जाओ, अभी जरूरत नहीं है, स्पार्क ने माइनस के अंदाज में सहलाते हुए कहा और फिर वो तेजी से मुड़कर बेड की तरफ बढ़ता चला गया। चूंकि वो दोनों ठीक है, जाओ, अभी जरूरत नहीं, स्पार्क ने माइनस के अंदाज में सहलाते हुए कहा और फिर वो तेजी से मुड़कर बेड की तरफ बढ़ता चला गया। चूंकि वो दोनों वेटर की नजरों में आ गए थे, इसलिए अब उनका दरवाजे से अकेला निकल कर जाना वेटर को मशकूक कर सकता था और वेटर की मुस्तैदी देखकर इसने यही अंदाजा लगा लिया था कि अगर इसने इन दोनों को कत्ल कर दिया तो वेटर इसे होटल से बाहर निकलने की मोहलत ही न देगा। इसलिए इसने फिलहाल इन दोनों के कत्ल का इरादा बदल दिया और ब्रीफ केस उठाकर वो पिछली खिड़की की तरफ बढ़ता चला गया। इसने खिड़की खोली तो दूसरी तरफ एक तंग सी गली थी, जिसके मुकाबिल एक और 8 मंजिला बिल्डिंग मौजूद थी। स्पार्क ने सर बाहर निकालकर देखा तो उसे खिड़की के करीब ही एक पाइप नीचे जाता दिखाई दिया। इसने ब्रीफ केस को बेल्ट के साथ बांधा और फिर खिड़की देखकर इसने हाथ बढ़ाकर पाइप को पकड़ लिया और दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से पाइप से खिसकता हुआ चंद ही लम्हों बाद नीचे गली में पहुंच गया। गली में पहुंचते ही वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। ब्रीफ केस इसने बेल्ट से निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। सड़क पर पहुंचते ही स्पार्क दाएं तरफ मुड़ा और फिर चंद लम्हों बाद ही एक खाली टैक्सी उसे मिल गई। एयरपोर्ट, स्पार्क ने टैक्सी में बैठते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सहलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जल्द ही वो एयरपोर्ट पहुंच गए। स्पार्क ने किराया अदा किया और ब्रीफ केस उठाकर विजिटर गैलरी की तरफ बढ़ता चला गया। विजिटर गैलरी में दाखिल होते ही वो इसके हाथ में चला गया। फिर इसने ब्रीफ केस खोलकर इसमें से एक नया सूट निकाला और पहने हुए कपड़े उतारकर इसने ब्रीफ केस में ठूंसने और नया सूट पहन लिया। इसके बाद इसने ब्रीफ केस के नीचे खाने में से मेकअप बॉक्स निकाला और फिर बाथरूम के आईने में देखकर इसने चेहरे और बालों पर मेकअप करना शुरू कर दिया। उसे दरअसल ये तसव्वुर भी ना था कि इस पसमानदा मुल्क में भी इसे पहचान लिया जाएगा, इसलिए इसने मेकअप करने की जरूरत भी महसूस न की थी। लेकिन अब उसे अपना नजरिया बदलना पड़ गया था। उसे जिस आसानी से न सिर्फ शनाख्त कर लिया गया था बल्कि हमला आवर बगैर कोई वक्त जाया किए इस पर चढ़ दौड़ते थे। इससे वो इसी नतीजे पर पहुंचा था कि यहाँ के लोग इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा होशियार, चालाक और मुस्तैद थे। मेकअप करने के बाद इसने ब्रीफ केस से नए मेकअप के मुताबिक पासपोर्ट और दीगर कागज निकाले और इन्हें जेब में डाल लिया। इसकी ये आदत थी कि वो जिस मुल्क में भी जाता अपने साथ 3 मुख्तलिफ नामों और फोटो के साथ अलग-अलग पासपोर्ट को कागज तैयार कर रखता था और अब यह पासपोर्ट के लिहाज से वो वेस्टर्न पोल का बाशिंदा था और अब इसका नाम अर्थ जे लाक था। आईने में हर तरफ से जायजा लेने के बाद जब वो पूरी तरह से जायजा लेने के बाद मुतमईन हो गया तो इसने ब्रीफ केस बंद किया और बाथरूम से बाहर निकल आया। अब इसका रुख ही मौजूद पब्लिक फोन बूथ की तरफ था।
फोन बूथ में दाखिल होकर इसने जेब से सिक्के निकालकर इसमें डाले और फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना शुरू कर दिए। चंद लम्हे घंटी बजने की आवाज के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। यस, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा बेहद कड़क था। सिकाई लॉक स्पीकिंग। स्पार्क ने इससे भी ज्यादा कड़क लहजे में कहा, ओह सर, हमें आपकी तरफ से कॉल का इंतजार था। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा मुतबाना था। काम का क्या हुआ? स्पार्क ने पूछा। रेड ब्लू कभी नाकाम नहीं हो सकता। काम मुकम्मल हो गया है। आपका शुक्रिया हमारे पास मौजूद है। आपका शिकार हमारे पास मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा गया। इसकी हालत कैसी है? स्पार्क ने चौंकते हुए पूछा। मामूली सा जख्मी हो गया था, इसकी बैंडेज कर दी गई है और फिर उसे तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया है। अब इसे जैसे हुक्म करें। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। मैं उसे खुद देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि आपने इसे सही आदमी को ट्रैप किया है या नहीं। स्पार्क ने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा, ठीक है, आप अर्थर बार पहुंच जाइए। वहाँ वेटर से ब्लैक कॉफी मंगवाइए और ब्लैक कॉफी पीने के बाद वेटर को 100 रुपए का नोट देकर बाकी रकम की टिप दे दीजिएगा। हमारी आदमी आपसे मिल जाएगा और कोड रेड दोहराइएगा। आपने ब्लू कहना है और फिर वो आदमी आपको पहले हेड क्वार्टर पहुंचा देगा और दूसरी तरफ से तफसीली हिदायत दे देगा। ओके, मैं पहुंच रहा हूँ, स्पार्क ने कहा और फिर रिसीवर रखकर वो ब्रीफ केस उठाए बूथ से बाहर निकल आया। रेड ब्लू रूसिया की पार्टेशिया में खुफिया तंजीम थी और इसे सरकारी तौर पर इस तंजीम से राब्ता कायम करने का हुक्म दिया था। चुनाचे इसने यहाँ आते ही इससे राब्ता कायम किया और रेड ब्लू वाकई बेहद तेज निकली। ओके, इसने फौरन ही मिशन मुकम्मल कर लिया। वेटर्स गैलरी से बाहर निकलकर इसने खाली टैक्सी हासिल की और इसे आर्थर पार चलने का कहकर वो मुतमईन से नशिस्त पे बैठ गया। उसे इत्मीनान था कि वो इसका मिशन मुकम्मल हो गया है और ये इसकी एक बड़ी कामयाबी है। इमरान चाय की प्याली खत्म करके दानिश मंजिल जाने के लिए उठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने चौंककर रिसीवर उठा लिया। मैं ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर से बोल रहा हूँ। फरमाइए, कौन से खाने की तरकीब पूछनी है आपने? हमारी फीस खासी है, ये बात सोच लीजिएगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं ब्लैक जीरो बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से जाहिर की हस्ती हुई आवाज सुनाई दी। जीरो नहीं जनाब, जीरो से काम नहीं चलेगा। जीरो से पहले 3-4 आदाद भी लगे होने चाहिए। इस आदाद के बाद भी बेशक जीरो वाइट ही क्यों ना हो, चल जाएगा, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, आपके जीबी के किसी स्पार्क को जानते हैं? ब्लैक जीरो ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। स्पार्क तो पलंग होता है, हो सकता है। स्पार्क तो प्लग होता है, हो सकता है किसी के जीबी कंपनी का बना हुआ हो, क्योंकि क्या वो स्पार्क नहीं कर रहा? इमरान ने इसी तरह बेनियाजी लहजे में कहा। इसका मतलब है कि ये कोई अहम शख्सियत नहीं है। चलो ठीक है, मैं सफदर और कैप्टन शकील से कह देता हूँ कि वो इनकी निगरानी खत्म कर दे। ब्लैक जीरो ने एक मुतमईन लहजे में कहा। निगरानी और स्पार्क की? भाई, किसी मिस्त्री को कह देना था, वो इसे उठा कर देता या फिर नया ले लेना था। ख्वामख्वाह टेलीफोन कॉल का 1 रुपया जाया किया। इमरान ने कहा, लेकिन इसकी आंखों में चमक आ गई थी। ओके इमरान साहब, बस यही पूछना था। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। अरे इतनी भी क्या जल्दी, ये तो बताइए कि सफदर और कैप्टन शकील किस और वर्कर्स में बैठे स्पार्क प्लग की निगरानी कर रहे हैं? इमरान ने जवाब तेज लहजे में कहा। अभी थोड़ी देर बाद पहले सफदर का फोन आया था होटल सिराजार से। आज सुबह वाला कोई खसूसी प्रोग्राम था और सफदर और कैप्टन शकील ये प्रोग्राम देखने वहां गए थे। वहां कैप्टन शकील भी और दीगर और गैर मुल्की को चेक कर लिया और सफदर को बताया कि ये शख्स केजीबी का खतरनाक तरीन सेक्टर है।
कैप्टन शकील जब मिलिट्री सेक्रेटरी सर्विस में था तो एक बार इससे टकरा चुका था, जिस पर सफदर ने वेटर से मालूम किया कि ये शख्स होटल सलाजार में ही मुकीम है और इसका नाम रॉकफील्ड है, जो चौथी मंजिल के कमरे नंबर 12 में है। जिस पर सफदर ने अब मुझे फोन किया और इसके बारे में हिदायत की। केस में चूंकि मुझे शख्स की अहमियत का किसी भी लिहाज से अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने उसे फिलहाल सिर्फ निगरानी का हुक्म दिया है। अब आपकी बातों से मालूम हो रहा है कि वाकई इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें कॉल करने का हुक्म खत्म कर देता हूँ। ब्लैक जीरो ने पूरी तफसील बताते हुए तुमने जीबी की फाइल चेक की? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, मैंने चेक की है। इसमें स्पार्क का जिक्र कहाँ से आ गया? लेकिन बेहद सरसरी से अंदाज में ब्लैक जीरो ने फोन पर जवाब दिया। ओके, मैंने खुद ही चेक कर लूंगा। बाय बाय, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। इसके जहन में स्पार्क का नाम ठटक रहा था। इसके जहन में एक मुताल्लिक कोई बात आकर रह गई थी। रूसी अहमियत के लाशोर में मौजूद थी। वाज़ेह तौर पर कोई बात शऊर में न आ रही थी। बहरहाल इसने फैसला कर लिया था कि पहले स्पार्क को चेक करेगा और इसे बेहद दानिश मंजूर जाएगा। क्योंकि हो सकता है कोई काम भी बात सामने आ रही हो। यह फैसला करके इमरान फ्लैट बाहर निकला और फिर इसने नीचे नए गिराज से अपनी कार निकाली और होटल सिलाजारी की तरफ चल पड़ा। होटल सिलाजारी नया तामीर हो चुका था और ये इमरान को आज तक इस होटल में जाने का इत्तेफाक न हुआ था। थोड़ी देर बाद ये फैसला कि इमरान फ्लैट से बाहर निकला और फिर इसने नीचे बने हुए गैराज में अपनी गाड़ी कार्नोल होटल सप्लाई की तरफ चल पड़ा। होटल सिलाजार इस तामीर हुआ था और उमर के आज तक इस होटल में जाने का इत्तेफाक न हुआ। इमरान वाकई खासी खूबसूरत और जदीद अंदाज की थी। इमारत वाकई बहुत जदीद और बड़ी खूबसूरत अंदाज की थी। कार रोक कर इमरान नीचे उतरा और पार्किंग कार्ट लेकर वो आगे बढ़ता चला गया। इसकी नजर एक तरफ पड़ी सफदर की कार पर थी और सर हिलाता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। कार देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि सफदर और कैप्टन शकील दोनों हाल में मौजूद होंगे और इसने सोचा था कि आज वो इन्हें
اتنا تنگ کرے گا کہ آئندہ وہ ہوٹل گردی کر بھول جائیں گے۔ مین گیٹ میں داخل ہوتے ہی عمران نے سرچ لائٹ سے اندر میں نظر گھماتے ہوئے ہال میں جائزہ لیا۔ ہال میں اس وقت بہت کم لوگ موجود تھے، بیشتر میزیں خالی پڑی تھی، لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ دوسری تشریف لائیے۔ یہاں کتاب کا پارٹ 4 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 67 سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔